Good morning, students. Today we will start with the heart of the birds and then we will discuss the heart of the mammals. Now coming first to the heart of the birds. This is the diagram of the heart of the pigeon. So birds are very active animals. They have a very high metabolic rate. So their heart is also more efficient than that of the reptiles. So what is important about the heart of the birds? That the heart of the birds, it is four chambered heart. That means it have the true four chambers. The two are the auricles and the two are the ventricles. That means the auricles, they are also completely divided into two chambers, and the ventricles are also completely divided into two chambers. That means we have a complete interventricular septum which divides the ventricles into two, that is the left and the right ventricle, right? So this is the advanced character which is present in the heart of the birds as comparison to that of the reptiles. In case of the reptiles, we have seen earlier that the ventricles, they have the incompletely divided ventricles. That means they have the septum, जो इनका सेप्टम है वेंट्रिकल्स के बीच का, उसकी डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट है. दैट्स व्हाई द वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स, नॉट द completely divided two chambers. Now the accessory chambers, if we talk about the accessory chambers, both the accessory chambers are absent and the sinus venosus, that is completely merged into the right auricle, right? And we have the complete double circulation. हमने रेप्टाइल्स में देखा था कि थोड़ी सी हमारी पार्शियल डबल सर्कुलेशन थी बिकॉज द मिक्सिंग ऑफ ब्लड वाज टेकिंग प्लेस इन द वेंट्रिकल्स बिकॉज द सेप्टम वाज नॉट कंप्लीट. बट हियर द बर्ड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स व्हिच हैव द कंप्लीटली double circulation. That means it have the complete separation of the oxygenated and the deoxygenated blood. Another important feature is that there are two aortic arches. जो साइनस वेनोसिस है वो तो आपका राइट ऑरिकल में मर्ज हो जाता है, जबकि जो आपका कोनस आर्टरियोसिस है वो स्प्लिट हो जाता है आपके टू एओटिक आर्चेस में. वन इज द पल्मोनरी आर्च दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड अनदर इज योर सिस्टेमिक आर्च, एंड हियर द सिस्टेमिक आर्च इज योर द राइट सिस्टेमिक आर्च. ठीक है, यहां पर बर्ड्स केस में राइट सिस्टेमिक आर्च होती है. अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो बर्ड्स का हार्ट होता है उसमें काफी ज्यादा चीजें वैसी ही होती हैं जैसे ह्यूमन हार्ट में होती है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो बर्ड्स या एवियन हार्ट और मैमेलियन हार्ट के बीच में है वो ये है कि जो हमारा मैमेलियन हार्ट होता है वहां पर जो सिस्टेमिक आर्च प्रेजेंट होती है या सिस्टेमिक एयोटा प्रेजेंट होती है, दैट इज द लेफ्ट वन, whereas in case of the birds we have the right systemic arch. So this is also an important question from the examination point of view. कई बार one word में पूछ लेते हैं कि birds में कौन सी systemic arch present है. Birds have the right systemic arch whereas the mammals have the left. जबकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में दोनों लेफ्ट और राइट बोथ सिस्टेमिक आर्चेस वर प्रेजेंट. ठीक, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द बर्ड्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द valves which are present in between the auricles and the ventricles, on the right side we have a single muscular flap like structure which is present between the right right auricle and the right ventricle. It is called as the auriculoventricular aperture guarded by the auriculoventricular valve, whereas on the left side we have the bicuspid valve. ठीक है, बाइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व जिस तरह से मैमेलियन हार्ट में प्रेजेंट होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन हमारे केस पे यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, लेकिन यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व नहीं है. यहाँ पे एक सिंगल फ्लैप लाइक ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर जो है वो प्रेजेंट है और उसी का वाल्व भी जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन द हार्ट ऑफ द बर्ड्स एंड द हार्ट ऑफ द मैमल्स. नाउ the heart of the birds,
जो बर्ड्स का हार्ट होता है उसका साइज भी कंपैरेटिवली बच्चों थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बर्ड्स जो है उनका मेटाबॉलिक रेट हमसे भी ज्यादा हाई होता है और वो हमसे भी ज्यादा एक्टिव एनिमल्स हैं. दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द हार्ट इज कंपैरेटिवली लार्जर एज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी. नाउ कमिंग टू द detailed structure. So chambers, I have told you earlier also that the birds, they have the two chambers which are auricles on the interior sides and two ventricles on the posterior side. That means in total we have the 4 true chambers, no accessory chambers. The accessory chambers so present are modified or the split one. Now the auricles are present on the interior side. बिल्कुल वैसे जैसे बाकी हार्ट्स में हमने बात की, ऑरिकल्स थिन वॉल्ड होते हैं, वेंट्रिकल्स आपके जो है वो थिक वॉल्ड्स होते हैं. ऑरिकल्स दे फॉर्म द इंटीरियर 1/3 एंड द इंटरऑरिकुलर सेप्टम दैट हैव अ डिप्रेशन कॉल्ड एज द फॉसा ओवेलिस. ठीक है, सो ये जो फॉसा ओवेलिस जो डिप्रेशन है जो इंटरऑरिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल वही है. दिस इज द वेस्टीज ऑफ द फोरामेन ऑफ ओवेल. जो फोरामेन ऑफ ओवेल जो एम्फीबियंस में एक्चुअल में प्रेजेंट था, उसी फोरामेन ऑफ ओवेल का ये एक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ जो है वो वेस्टीज के फॉर्म में रह जाता है इन केस ऑफ द बर्ड्स एंड द मैमल्स ऑल्सो. राइट, नाउ द walls, if you talk about the muscles or the wall of the auricles also have a low network of the ridges. यहाँ पर auricles में भी ridges हैं, जबकि जो हमारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के हार्ट थे उसमें ऑरिकल्स में रिजेस नहीं थे. ऑरिकल्स की वॉल जो थी वो काफी स्मूथ थी, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ऑरिकल्स में भी रिजेस हैं एंड वी कॉल देम एज द मस्कुलाई पेक्टिनाटी. सो दिस ऑरिकल्स also have these muscles to increase the surface area so that the more of the blood that can be hold here. Now the auricles, the right and the left auricles. The right auricles, this is the right side of the heart and this is the left side. ये थोड़ा सा मैंने लिखा भी है. So right auricle, if we talk about right auricles, you all know that the right side of the heart that receives the deoxygenated blood. So here we get the deoxygenated blood by means of the two precaverns, the right and the left one, which get the blood from the interior side of the body. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के इंटीरियर साइड से राइट और लेफ्ट प्रीकेवल से आएगा और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से जो ब्लड है वो आएगा थ्रू द पोस्ट केवल. And here are the opening. So the opening of the post cable, that is this opening, this is being guarded by a valve called as the valve of the Eustachius or the Eustachian valve. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस भी प्रेजेंट होती है. तो कॉर्नरी साइनस की जो ओपनिंग है वो भी एक वॉल्व से गार्डेड होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्व ऑफ द थेबेसिस. ठीक है, अब ऑरिकल्स जो है वो ओपन करेंगे वेंट्रिकल में. मैंने पहले ही बताया यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व जैसे कि मैमेलियन हार्ट में होता है वो नहीं है. हियर वी हैव द सिंगल ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर अपर्चर गार्डेड बाय द ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व. राइट, सो यहाँ पे सिंगल एक मस्कुलर हमारा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. उसके बाद आगे हम लेफ्ट साइड पे बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपकी जो पल्मनरी वेन्स हैं उसकी ओपनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी और यहाँ पर ऑरिकल्स जब वेंट्रिकल में एंटर करते हैं सो हमारे पास 2 वॉल्व्स प्रेजेंट हैं एंड वी कॉल देम एज द बाइकास्पिड वॉल्व or the mitral valves. Right, so these are the auricles. Now the next chambers are the ventricles. The ventricles, they form the 2/3, the posterior 2/3. Auricles form the interior 1/3, whereas the ventricle form the posterior 2/3 of the heart, and they have a very thick and they have a very thick musculature. The interventricular septum is complete so that the birds have the complete double circulation. ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड से अराइज करेगी आपकी सिस्टेमिक आर्च और आपके राइट साइड से अराइज करेगी आपकी पल्मनरी आर्च और द पल्मनरी aorta. And the ventricles, they also have the ridges
called as the papillary muscles, and there are many small size the columnae cornea are also present. So ये सब चीजें वैसे ही हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं. और यहाँ पे एक और टर्म आ गई है cordate tendineae. Now these cordate tendineae are what? These are the cord-like structure which are attached to the muscles on one side and to these walls on the other side. ये जो walls हैं इनके क्लोजर में ये हेल्प करते हैं ताकि जब ब्लड यहाँ पे फ्लो कर जाता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो कहीं इसका बैक फ्लो ना हो जाए. सो कॉर्डेट टेंडाइने दे होल्ड दिस valves and help in the closure of these valves. Now these arches, जो arches हमारे यहाँ पे present है, that is the systemic arch and the pulmonary arch. इनकी opening पर भी semilunar walls, the 3 semilunar walls are present, right? So इसमें complete double circulation होगी. बिल्कुल वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक जो है वो ह्यूमन हार्ट की तरह ही है. सो इसकी वर्किंग हम तभी स्टडी करेंगे जब हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग स्टडी करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द बर्ड्स. नाउ कमिंग टू द हार्ट ऑफ द मैमल्स. ये आपने बहुत अच्छे से +2 में भी किया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वहां पर ये. और हमारे इस पेपर में भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो मैमेलियन हार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड most peculiar type of the heart. It have the 4 chambers, the 2 auricles and the 2 ventricles, and it also have the complete double circulation where there is a complete separation of the oxygenated and the deoxygenated blood. Let's see the diagram. I will show you the diagram from +2 book. मैं ये डायग्राम को इसलिए शो कर रही हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे ये डायग्राम यहाँ से जो है वो ज्यादा इसकी क्लैरिटी लग रही थी. सो आई विल शो यू द डायग्राम फ्रॉम दिस बुक. सो दिस इज द हार्ट ऑफ द ह्यूमन. इसके काफी सारे फीचर्स जो है वो हमने बर्ड्स के हार्ट में भी स्टडी कर लिए क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है वो रहती है आपके मैमेलियन हार्ट और बर्ड्स हार्ट के बीच में. The auricles are the interior chambers and the septum, that is the interauricular septum, that have the fossa ovalis, which is the vestige of the foramen of ovale. Then we have the auricles. After auricles we have the ventricles. ठीक है. और आपके auricles जो है वो उनकी walls जो है वो thin walled हैं, ventricles जो है वो काफी thick walled हैं. जो आपका auricles है, if we talk about the auricles, so here on the right side we have the impure blood. We are getting the impure blood with the help of the superior vena cava and the inferior vena cava. Superior vena cava will bring the impure blood or the deoxygenated blood from the upper part of the body, whereas the inferior vena cava will bring the deoxygenated blood from the lower part of the body. So here are the openings, and we have another opening also here, which is the opening of the कॉर्नरी साइनस. सो यहाँ जैसे कहीं पर आपके ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सो दैट वी गेट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्टेड ओवर द राइट साइड. दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. ठीक है. तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है और ऑरिकल्स के बाद आपके आते हैं वेंट्रिकल्स. ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लेफ्ट ऑरिकल की. लेफ्ट ऑरिकल्स में हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द ओपनिंग ऑफ द पल्मनरी वेन्स. दिस पल्मनरी वेन्स विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है यहाँ पर आपके पल्मनरी वेन्स जो है वो कलेक्ट कर देती है. ठीक है. अब ये ऑरिकल्स जब वेंट्रिकल्स में ओपन होंगे, सो कौन कौन से वाल्व्स प्रेजेंट होंगे? On the left side we have the bicuspid valve or the mitral valve. This valve was also present in the heart of the birds, whereas on the right side we have the tricuspid valve. ठीक है. सो यहाँ पे जो ट्राइकास्पिड वाल्व है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि हमारे जो बर्ड्स का हार्ट था उसमें ट्राइकास्पिड वाल्व जो था वो एब्सेंट था. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट आर दी वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स जो है उसकी मस्कुलेचर काफी थिक है और काफी ज्यादा इसमें जो हमें रिजेस और फिशेस जो है वो देखने को मिलेंगे. सो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है, लो रिजेस भी प्रेजेंट है, कॉर्ने एंड वी ऑल्सो हैव द कॉर्डे
Tendine है the cord-like structure which are attached to the muscles, papillary muscles on the one side and to the flaps. That is the ये जो आपके flaps हैं या आपके valves जो हैं यहाँ पर दूसरी तरफ उनके साथ attached है ताकि इनकी opening और closure में हेल्प कर सके. ठीक है. सो ये कुछ एक चीजें जो है हमने पहले भी जो हमारा हार्ट बर्ड का स्टडी किया था उसमें भी हमने ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो देखी हुई हैं. ठीक है. Now talking about the arches. So here from the left side of the heart, the arch which arise is your aortic arch. This aortic arch will carry the oxygenated blood to the different parts of the body, and from this side, that is the right side, we have the pulmonary arch. The pulmonary arch will carry the blood to the lungs, the deoxygenated blood to the lungs, so that it can be oxygenated. ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि यहाँ पर ह्यूमन के केस में जो एयोटिक आर्च हमारे पास प्रेजेंट है वो है आपकी लेफ्ट एयोटिक आर्च. ठीक है. जबकि बर्ड्स के केस में जो हमारी प्रेजेंट थी वो कौन सी थी? राइट एयोटिक आर्च. तो यहाँ पर ह्यूमन मैमल्स के केस में जो एयोटिक आर्च प्रेजेंट है वो है लेफ्ट. ठीक है. तो ये चीजें हमें थोड़ी ज्यादा तब क्लियर होंगी जब हम टॉपिक करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द एयोटिक आर्चेस. नाउ लेट्स सी द सर्कुलेशन. जो ह्यूमन हार्ट है उसमें या जो आपका मैमेलियन हार्ट है उसमें कंप्लीटली हमें देखने को मिलेगी डबल सर्कुलेशन. तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये इस तरह से डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. सो ये हमें बिल्कुल क्लियर है डायग्राम कि आपके ऑरिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिवाइडेड हैं, वेंट्रिकल्स भी कम्प्लीटली डिवाइडेड हैं, और आपके जो लेफ्ट ऑरिकल्स हैं वहां से ब्लड जो है वो जा रहा है, आप वहां पर ब्लड आ रहा है लंग्स से. जब उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वी गेट ऑन द लेफ्ट साइड. फ्रॉम द ऑरिकल्स इट रीचेज टू द ventricles, and from the ventricles it goes to the body. right. From the body जो उसमें ऑक्सीजन है ब्लड में वो कंज्यूम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट जिसमें ज्यादा होता है वो वाला ब्लड या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, वो इम्प्योर ब्लड जो है थ्रू द सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा इट रीचेज द राइट ऑरिकल. ठीक है. फिर यहाँ पे आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है, सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है, एंड देन फ्रॉम द राइट ऑरिकल इट रीचेज टू द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मरी आर्च के थ्रू जो है वो आपके लंग्स तक पहुंच जाता है. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन which is present in the birds and mammals also. birds और mammals दोनों में होते हैं क्योंकि birds और mammals दोनों में ही auricles और ventricles completely divided होते हैं. there is no mixing of blood, there is complete separation of the oxygenated and the deoxygenated blood. आप ये वाला डायग्राम भी कर सकते हैं वर्किंग के लिए, या फिर आप ये वाला डायग्राम जो आपके प्रदीप की बुक में या आपने +1-2 की बुक में जब भी पढ़ा आपने सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें ये वाला डायग्राम दिया होता है, दैट इज दी डबल सर्कुलेशन. सो दिस इज दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी डबल सर्कुलेशन इन द बर्ड्स एंड द मैमल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट ऑफ द बर्ड्स एंड द मैमल्स. ये वाला जो टॉपिक है इसमें मैमेलियन हार्ट आपने अच्छे से लर्न करना है क्योंकि कई बार इसको पूछ लेते हैं. इसका डायग्राम भी हमने अच्छे से लर्न करना है और इसकी वर्किंग भी थोड़ा सा हमने देख लेनी है. ठीक है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द एयोटिक आर्चेस, विच वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.